जे कोई प्रभु जी बीमार आ, प्रभु तो अपना हाथ उठा के चंगा कर बंद कीजिए और प्रभु सारी किन जगह पर बलियां हुई लोग तेरा नाम लेते गए प्रभु भाई आशीष बच्चे दो अभी जिन्हें भी जन तेरे कदम पाए बढ़िया टीका वा प्रभु सारी दुनिया में देखो तेरा पवित्र वचन और तेरा सामर्थ्य काम करे सन अपने वचन से आगे बढ़ना धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी सारियां ने वफादारी से और प्रभु जी असि अपनी मुश्किलों को तेरे गिरा के देने तू ही खुदा हाल करने वाला प्रभु ना खुदावन बड़े नाम महिमा दे प्रभु जी इसी तेरे वचन से ध्यान करना साड़ी मदद करना यीशु के नाम में आमीन। आओ से थोड़ी देर प्रभु दे वचन में जो कुछ गल्लां ते ध्यान करांगे असि नवे नियम चो एक आयत पढ़ांगे प्रकाश की पोथी ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ प्रकाश की पोथी ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। जैसे प्रभु के वचन विच यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना नूं इस वचन के बारे दसदे पे और दुनियावी तौर पर जो आप एक गल देखी होगी कि जो आप घर के हुंदे आ ਜਾਂ घर के जी ਜਿਹੜੇ बाकी वो बाहर गए होना ते घर में ਜਿਹੜਾ मेन बजुर्ग आ वो घरे हुंदा ਜਦੋਂ ते कोई भी अनजान बंदा जे घर च आउंदा वा ते सब तो पहला तो ये पुछदे आ भी तू कौन है दूजा ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ तीजा किनू मिलना है ते कई जेडे बजुर्गों का स्वभाव बड़ा गुस्से वाला हुंदा वो थोड़ा जल्दी बोलते जे गांव में बढ़ता जाए कहते किधर मुंह चुके गांव बढ़ता हुंदा किनू मिलना है ओनू बाहर ही खिलार के जिहदे नाल जान पहचान नहीं गई ओहदी गल करदे आ जे दुनियावी तौर पे आप इस गल पे ध्यान करते हैं कि जिन्होंने आप जानते नहीं गए जिहदे बारे सानू पता नहीं गा ते आप कभी भी उन्होंने अपने घर विच अंदर नहीं आउण दिंदे ते आत्मिक तौर पे असीं जो अपनी जिंदगी दे वाल देखने हैं कल भी प्रभु के वचन विचों काफी गल्लां सीखियां विश्वास के उत्ते देखिया और पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने पुत्र नूं तुहानूं देना मतलब साडे एक बालक दिता गया साडे पापां दी कीमत देण दे लई सिर्फ इन्ना ही बल्कि वो साडे ते राज भी करता है साडा मालिक भी आ और आराधना के बारे आपां ध्यान कीता प्रभु दे वास्ते दुख सहण दे बारे आपां सिੱਖਿਆ जो कि प्रभु दा दास पौलुस अपनी पत्री उत्ते दसदा पर इहदे नाल अज आपां एक गल ते ध्यान करना प्रभु का दास पौलुस अपनी पत्नियां
ਦਾ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਏ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਬਦੀ ਨੂੰ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ,
उस समय पवित्र आत्मा सब अपनी शक्ति के नाल की करता वा यीशु दे राह ते चला के ते ओदे आगमन लई ओदे स्वर्ग राज लई ਸਾਨੂੰ की करता वा तैयार करता है। इस करके यीशु मसीह ने कहा कि मैं बड़ियां जिंदगियां ने अखियां जिन्हां दे विच अजे मैं रहना चाहता हां पर वो लोग मेरी आवाज नहीं सुनते नहीं पए वो मेरी आवाज को पहचानते नहीं पए ने वो चाहता वा कि मैं हर दिन जिंदगी विच आके रहां और ओदे नाल मैं आत्मिक भोजन करा और वो मेरे नाल करेगा। मतलब कि असि जो प्रभु को अपनी जिंदगी जगह दे प्रभु सानू आत्मा के द्वारा अपनी गल्लां दसदा वा और सन आत्मिक तरीके दे नाल अगे ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ और ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਗਾ ਕਰੇਗਾ। पर अज बहुत सारे लोग ने कई जिंदगियां में कई प्रकार ਦੀਆਂ चीज़ां ने उन्होंने अंदर जगह करके बह गई। इस करके कई बार लोग परमेश्वर की आराधना तो परमेश्वर की बंदगी तो दूर भजते हैं। उन्होंने भजाने वाला यीशु मसीह नहीं गा जे उन्होंने जिंदगी में सचमुच पवित्र आत्मा की जगह की ते पवित्र आत्मा यीशु दे कोल लेके आंदा वा। पिता परमेश्वर की आराधना दी उसनु अगवाई करता वा उसनु पाप तो बचाउंदा वा उसनु लड़ना सिखाउंदा वा। पर जे दूजियां चीज़ां ने जगह की ते वो चीज़ां उन्होंने अपने तरीके नाल चलाउणियां। पर असीं जो प्रभु दे ते विश्वास करने वाले हां उसदा नाम लैण वाले हां असीं कभी भी अपने अंदरों अपने जीवन चों जो कि ये साडा नहीं गा बल्कि खुद परमेश्वर कहता पिया वा कि ये तुहानू मेरे वालों मिलिया वा और ये पवित्र आत्मा का स्थान है। ये यीशु मसीह दे वचन की जगह वा जो यीशु दा वचन यीशु दा आत्मा साडे जीवन च आ जांदा ते सानू वो संभाल के रखदा वा। सन कदी भी छड्डदा नहीं गा सन कदी भी त्यागदा नहीं गा बल्कि साडे दुख दे विच भी साडी बांह फड़ के सानू अपने राह ते लेके चलदा है। सो प्रभु इन्हां वचनां च तुहानू आशीष करदे मैं बाकी का समा प्रभु दे दास नूं दूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। आज हमने प्रभु के वचन से प्रकाशित वाक्य से एक वचन के ऊपर ध्यान किया है जो उसके 30वें अध्याय का 20वां वचन है। इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु उनको कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्यों? आज ये बात जो है हम अपने तरीके से लेते हैं अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक उसको नहीं जाने उसको पहचाना नहीं है बल्कि लदुकिया की कलीसिया जो है वो इस युग के अंतिम कलीसिया के रूप का एक चित्रण है उसका एक दर्शन है उसकी एक पिक्चर है जिसको यहां हम बाइबल पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। तो अंतिम समय में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह जी उठे हुए अपने दूत के द्वारा जो पतमस टापू में उसका दास जिलावती ने या ये कह सकते हैं बंदी गृह में डालकर उसको पतमस टापू पर रखा गया था। बेशक हम कह सकते हैं कि उसको एक सजा थी लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र जो है कभी कभी ऐसी बातों को जो पोशीदा होती है उस समय के अनुसार उसको उठाता है उसको खोलता है। रेवोल्यूशन जो है या प्रकाशित वाक्य जो है उसका जो सही तर्जमा है उसका जो सही अर्थ है उसका मतलब है
रिवील करना, बातों को उजागर करना या घटी हुई चीजों के पर्दे को उठाना। जब भी हम आत्मा की आवाज सुनते हैं तो प्रभु हमें अद्भुत तरीके से सिखाता है। आज सुबह में मैं आपको बताता हूं, हम सुबह मैं उठा और मेरे साथ जर्मी भी उठा और जर्मी भी प्रार्थना कर रहा था, मैं भी प्रार्थना और जर्मी ने मुझे बाइबल में से एक हिस्सा बताया और कहा पास्टर जी, तो वैसे तो मुझे ज्यादा बोल रहा है, लेकिन आज सुबह उसने मुझे संबोधन कैसे किया, पास्टर जी प्रभु ने ये वचन मुझे दिया है, इसको आपने बताना। तो जो वचन उसको प्रभु ने दिया उसने मेरे तक पहुंचाया और वो वचन था पहला राजा फर्स्ट किंग उसका 22 अध्याय कि जब इस्राएली लोगों में आहाब बादशाह राज्य करता था और यहूदा में यहोशापात जो था वो राज्य करता था। और उस वक्त अरामी लोगों ने क्या किया था, गिलियाद का जो इलाका था उसको अपने कब्जे में कर लिया था। और आहाब बादशाह के मन में ये एक इच्छा जाहिर हुई कि वो उन को देखते हुए उसको आजाद करवाने के लिए या उसको स्वतंत्र करवाने के लिए एक मन में इच्छा जाहिर हुई और वो बातें उसने यहोशापात के साथ जाहिर की। तो यहोशापात ने उसे ये जवाब दिया कि जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे तेरा परमेश्वर वैसे मेरा परमेश्वर, जैसे तेरी फौज जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे हैं। तो उसने क्या कहा, क्या तू मेरे साथ जंग लड़ने के लिए जाना चाहता है कि अरामी लोग जो हैं उनसे जो गिलियाद का इलाका कब्जे में किया गया है उसको फिर से बहाल किया जा सके, उसको कब्जे में ले सके। लेकिन यहोशापात का पहला सवाल क्या था कि क्या हम जंग लड़ने से पहले खुदा की पाक तस्वीर में जाएं ताकि खुदा हमें उस जंग के लड़ने के लिए अपनी आज्ञा या अपना फरमान दे कि वो उसके साथ या उनके साथ वो जाएगा या नहीं। तो इस्राएल में तो 400 नबी थे, आज भी नबियां ना हाड़ा आया, फ्लड आया, नबियां ना विश्वता का एक फ्लड आया हुआ, जिसको पूछो जिसको हाथ लगाओ वो बोलता मैं नबी हूं, मैं बोलने वाला हूं। तो क्या नबियों का मन, नबियों की आत्मा परमेश्वर के वश के अनुसार होकर बोलती है या नहीं? ये बात उस वक्त यहोशापात ने इस्राएल के राजा आहाब के ऊपर ये बात जाहिर की। और जब यहोशापात ने उससे पूछा कि क्या तेरे राज्य में नबी हैं कि हम परमेश्वर से जंग के बारे में पूछ सके, हमें जानना जायज है या नाजायज है या गलत है या अपनी सोच को लेकर चलना। तो ये विचार इस्राएल के राजा के मन में, आहाब बादशाह के मन में थे कि हमें आजादी अपने इलाके की चाहिए। क्या आजादी मेरी और आपकी जिंदगी में भी उस परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करती है या नहीं? ये बात मेरी और आपकी जिंदगी के लिए भी है। और इधर हम देखते हैं कि जब 400 नबी इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया, एक लोहे का स्टिंग बनाकर और राजा को दिखाया
परिशुद्ध वचन को पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे जर्मी के द्वारा जो बात बताई गई कि बताना है, तो उसको मुझे भी पढ़ना जरूरी था, मुझे भी जानना जरूरी था। कभी कभी हम क्या करते हैं, इधर खड़े होकर आत्मा की आवाज को सुने बगैर अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें लोगों की जिंदगी से वो बात नहीं होती जो परमेश्वर। इसलिए जब भी प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तो फिर परमेश्वर अपने गुप्त भेद जो है वो प्रकट करता है। तो इधर 400 नबियों के द्वारा गलत नबूवत, उनमें बहकाने वाली आत्मा, ऐसे लिखा, बहकाने वाली आत्मा ने क्या कहा परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कि मैं इनके फोटो के ऊपर बैठ जाऊंगी और जब इनके फोट पर बनाएंगे तो उससे झूठ निकलेगा। आज हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसे अंधकार की शक्ति जो है वो कार्य करती है कि जिन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता हमारी जिंदगी में, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको सही करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तरीके लेकर हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। आज भी दुनिया में एक ऐसा माहौल देख रहे हैं, लेकिन उधर एक ही परमेश्वर का नबी था जिसके बारे में अहाब बादशाह ये कहना चाहता था कि इसमें मेरे हक में कभी भी कोई बात नहीं। आज जो वर्तमान समय में नबी जो हैं वो कैसे लोगों को टॉस कर रहे हैं, लोगों को धोखे में डाल रहे हैं, लोगों को गलत बातें बताकर उनकी जेब को खाली करवाते हैं। उन्होंने जेबा खाली के मुद्दे में तेरा तो घाटा देगा बाबू, 2 नंबर नहीं हुए। नौजवान लड़की को बताते हैं तेरी शादी दूसरे एक लड़की के साथ हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें जो है वो बताई जाती है। उधर लोहे का सीख लेकर क्या कहा, कभी चढ़ाई करेगा तुझे फतेह मिलेगी और उस तेरे विरोधी आरामी बादशाह को, उसकी फौज को परमेश्वर तेरे हाथ में कर देगा, तेरे हाथ में कर देगा। नाम परमेश्वर का ले रहे, बोला अपनी इच्छा से, क्योंकि शैतान आकर गलत बातें दिमाग में बिठाता है जब हम उसको मौका देते। तो 400 नबियों के द्वारा क्या हुआ, गलत नबूवत होगी, लेकिन एक नबी मीका ने इस बात को सच्चाई के तौर पर जाहिर किया कि अहाब बादशाह अगर तू चढ़ाई पर जंग करने के लिए चलेगा तो तू कभी वापस नहीं आएगा। उसने उस एक नबी को दुख की रोटी देना आरंभ किया और लोगों को और अपने हाकिम को बोला इसको दुख की रोटी देना जब तक मैं वापस ना आऊं। लेकिन उधर क्या लिखा है, मीका ने क्या कहा, अगर तू वापस आ जाए तो ये समझना कि मुझसे परमेश्वर बात नहीं। इधर हम क्या देखते हैं, जो बात पहले से अहाब बादशाह के बारे में कही गई थी कि तेरी ऐसी मौत होगी, तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे, वैसे वो यह हालत जो वैश्य थी वहां नहाती थी, वहां जाकर रक्त को धोया गया, उसका लहू सुबह से लेकर शाम तक बहता। अजीजों, प्रभु के बच्चों को हम क्या समझते हैं, इतना हल्का समझते हैं कि इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको अपनी तरह से तर्जुमा दे सकते हैं। इधर खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, किस बात को बताने के लिए, किस बात को समझाने के लिए कि तू कहां खड़ा है। तेरी जिंदगी में वो इलाही मोहब्बत जो है, वो स्वर्गीय प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए मैं तुझे जगाना चाहता हूं कि मैं
आज ये बात हम अपनी जिंदगी में भी देख सकते, कलीसिया में भी देख सकते। खुदावंद तो बाहर, और जब वो अपनी हमारी गलतियों को बताना चाहता है तब हम उसका तर्जुमा गलत लेते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। इधर क्या बात लिखी हुई है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, अभागा मतलब बदनसीब, और दूसरा तू तुच्छ है, हकीर है, नापसंदी तेरे बारे में परमेश्वर ने जाहिर की है। तू नापसंद है उसको, तू उसको वो तुझे चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, लेकिन तू तो अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है। हो सकता है हमारे पास, हम कहते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। इधर क्या लिखा है? तो अभागा मतलब बदनसीब है, तो यानी कि हकीर है, तो उसे पसंद नहीं आती। उसके ऊपर पढ़े तो और बहुत बातें सुनने को मिलेगी। तो गुनगुना है, गुनगुने का मतलब ना गर्म ना ठंडा, बीच वाला। आज कंप्रोमाइजिंग सिस्टम चल रहा है, तालमेल के साथ चलोगे कोई बात नहीं। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तू गुनगुना है, तुझे मैं अपने मुंह से उगलने दूंगा। इधर मैं आपको सिर्फ 3 बातें ही कहूंगा, में हम उसके ऊपर ध्यान करें। तो उसको सम्मति क्या दी है, उसको सलाह क्या दी, इन बातों के ऊपर विचार करने के इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा, बल्कि 4 बातें बताऊंगा। सबसे पहले उसको सम्मति में क्या कहा? तो ताया हुआ सोना दे ले, तो खरा और ताया हुआ सोना ले ले, क्योंकि तेरे ईमान में कमजोरी आ गई, तेरे विश्वास में खोट आ गई है। कल भी हमने परमेश्वर के वचन से सुना, परमेश्वर के वचन में बताया गया खरा सोना कैसे खोटा हो गया, उसमें गिरावट कैसे आ गई, उसमें एंटी एलिमेंट्स कैसे घुस गए। आज हम दूसरे लोगों को बताते हैं एंटी एलिमेंट्स में काम कर रहे हैं, ये विरोधता का आभास है। अगर सच्चाई लोगों को बताई जाती है तो वो बोलते हैं कि एंटी एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सेवा को, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना नहीं चाहते। अहाब ने भी ये कहा कि आराम का इलाका, आरामी लोगों में से मुझे गिलाद का इलाका चाहिए, लेकिन गिलाद के इलाके में रहने वाले लोग कैसे हो गए? वो अपनी चंगाई के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी बातों को पाने के लिए दूसरों के पास जाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, गिलियाद में ऐसी औषधि नहीं है क्या कि मेरे लोगों के जख्म चंगे नहीं होते? क्या ऐसी औषधि नहीं है? तो फिर मेरे लोगों के जख्म क्यों नहीं चंगे होते? उन्हें चंगाई क्यों नहीं आती? इसलिए गिलियाद का इलाका जो था अरामी को वश में चला गया। आज प्रभु के लोगों के यही हाल है। इधर पहली बार परमेश्वर के वचन से हम क्या देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह के द्वारा जी उठे, यीशु मसीह के द्वारा जो ये कह रहा है, देख मैं मर गया, अब मैं जिंदा हूं और अब तक मरने वाला नहीं, मौत और पाताल की कुंजियां मेरे पास
कभी ईमान नहीं आ गई है, ईमान में कमजोरी आ गई है। हम कहते हैं कि हम दौलत वाले हैं, हम कहते हैं हम बहुत धनी हो गए, लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि खुदा कौन से सोने से जो तेरे ईमान की मजबूती को साबित करता है, तुझे हर एक हालात का सामना करने के लिए तेरे हाथ में वो ढाल है जो वैरी और अंधकार की शक्ति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को बुझाने के लिए है, उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए है। वो उतना सके उधर क्या शब्द लिखा है इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय के 17वें वचन में क्या लिखा है? विश्वास की ढाल ले लो। आज विश्वास की ढाल जो है वो पेटी में बंद करके रखी हुई है। वो बिल्कुल नहीं कि नहीं पड़ी, उस पर निशान नहीं, उस पर निशान नहीं है। दुश्मन के बाद झेलने की कोई निशानी नजर नहीं आती। हम खुदावंद की मोहब्बत से गिर गए हैं। जब यीशु मसीह के बारे में ये नबूवत कही गई कि तू जब अपने यहां से गया तो तेरे हाथों में निशान नहीं थे, लेकिन तेरे हाथों में निशान कैसे आ गए? तो लिखा है कि मैं अपनों के घर में गया तब ये निशान मुझे, लेकिन अपने पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए यूहन्ना के घर में क्या लिखा हुआ है? अपनों के पास आया, अपनों ने उन्हें पहचाना। अजीजों, सबसे पहली बार प्रभु का वचन क्या चाहता है? विश्वास के कर्ता के पास हम कभी जाते हैं। इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय के 2 वचन में ऐसे लिखा, ईमान के वाणी यीशु मसीह को तकते रहें, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को देखें। उसके निशान हमें बताते हैं। कहते इससे बढ़कर आपके ऊपर कोई भी जुर्म तशद्दुद नहीं हुआ, आपके ऊपर कोई भी ऐसा कष्ट नहीं आया, तो आपकी जिंदगी को तकड़ा करने के लिए आपके सामने विश्वास का करता जीवता यीशु मसीह है। वो आपकी जिंदगी को फिर से नई ताकत आपको दे सकता है। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? ताया हुआ सोना मुझसे वो ले ले, ताकि ईमान में धनी हो जाए। किस में धनी होना है? ईमान में धनी होना है। जब ईमान में धनी होंगे तो याकूब की पत्री के 1 अध्याय के 4 वचन में ऐसे लिखा है कि तुम्हें किसी बात की फिक्र ना होगी। ये खुदा के कलाम का वादा है जो खुद खुदा यीशु मसीह। इसमें दूसरी बात जो बताई गई है वो कहा गया है श्वेत वस्त्र। इधर क्या लिखा है? श्वेत वस्त्र लेने की पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। इशाया की पुस्तक के 61 अध्याय के 10वें अंक पढ़े, 61 अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़े। इशाया की पुस्तक उसका 61 चैप्टर वर्स 10। मैं यहोवा में बहुत खुश होवांगा, मैं यहोवा में मगन और आनंदित हूँगा। मेरा जी मेरे परमेश्वर में मगन होवेगा, मेरा जी मेरे परमेश्वर से मगन होगा। क्योंकि उस मैनू मुक्ति के वस्त्र पवाए, उसने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए। यहाँ तक कि आप जीवित ना रहें, उससे आगे बढ़े। हाँ जी, उस कर्म दे जोगे नाम की, हाँ उस कर्म में चोगे ना। इसमें पंजाबी में बहुत बढ़िया लिखा हुआ, धर्म के चोगे से मुझे क्या किया? ढांप दिया। चोगा कहते हैं बागे को, जो सिर से पांव तक आपको ढक सकता है।
आपके जीवन में जिसकी कीमत शरीर पर यीशु मसीह ने दी है, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता में कायम और मजबूत हो जाएं। इधर लिखा धर्म के तहने चोगे ना मैं सिर तो लगे पैर तक किया। धार्मिकता से आपका कोई बाहर नहीं आना चाहिए भैया। उसकी कीमत यीशु मसीह ने शरीर पर दी है। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि श्रेष्ठ वस्त्र ले ले ताकि तुझे नंगेपन से लज्जा शर्मिंदगी ना हो। हम दुनिया के तरीके से बहुत कुछ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी ताकत, अपनी सोच, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान होगा। प्रभु क्या चाहता है? उसकी धार्मिकता से जिसकी कीमत यीशु मसीह ने शरीर पर दी है, सिर से लेकर पांव तक आपको ढांपे रखे, ताकि हर एक दुनिया की आलूदगी का मतलब होता है गंदगी, उससे आप बच सकें। आप प्रभु के लिए पवित्र चाहिए। इसमें तीसरी बात क्या बताई गई है? आंखों के लिए सुरमा ले ले ताकि फिर देखने लगे। इधर ऐसे लिखा है, इधर लिखा है आंखों में डालने के लिए, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेने कि तू देख। परमेश्वर चाहता है आपको दर्शन के द्वारा, आपको भविष्यवाणी के द्वारा, आपको अपने वचनों के द्वारा अपने इरादे को आपके ऊपर जाहिर करें। जब फलिस्तियों ने समसून की शक्ति का भेद जान लिया तो लिखा है परमेश्वर से जो उसकी रिफाकत थी, उसकी संगति थी, उसकी रिलेशनशिप थी, उसको सप्लाई लाइन को कट कर दिया। कभी कभी हमारी भी सप्लाई लाइन कट हो जाती है। दलीला ने क्या किया? उसको अपने घुटनों पर लिटाकर उसके बालों की सातों लटों को काट दिया। परमेश्वर के साथ संबंध को बताता है, दर्शन और वह को बताता है। तब वो एक साधारण मनुष्य, लेकिन हम साधारण मनुष्यों को प्रभु चुनकर खास बनाते हैं। अगर हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो जो लिखा है कि जब उसकी सातों लटों को काट दिया गया तो साधारण मनुष्य हो गया, उसके आंखों को फोड़ दिया। लेकिन जब कैद में बंद रहा तब उसने अपने जीवित और समर्थी परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और खलील किया, प्रायश्चित किया, कफारा किया, और उस जेल में रहते हुए उसने अपने रिश्ते को, अपने नाते को, अपने रिलेशनशिप को फिर कायम कर लिया। लिखा है उसके बाल बढ़ने लगे, जिसको दुश्मन नहीं जानते। जब उसको तमाशा करने के लिए बाहर लाया, याद रखें कि इधर एक बात सीखने को मिलती है। जब हम अपने आप को गुलाम के हाथों से निकालने की कोशिश करते हैं तो शैतान हमारा तमाशा बनाता है। लेकिन उनके लिए तो तमाशा था, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि उसके बाल बढ़ चुके हैं। परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में आ चुकी है। कफारे के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, अपने आप को नम्र और दीन करने के द्वारा आ चुकी थी और उसने घर से पाया।
अजीजों, शैतान चाहे कितना भी चालाक हो, सामर्थ्य हो, शक्तिशाली हो, प्रभु के लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं है। एक तिनकी के समान हो जाता है, पानी से भी पतला हो जाता है अगर हम अपने घुटनों के बल दृढ़ होकर खुदावंद की हजूरी में अपने आप को झुकाते हैं। फिर पूरा अंधकार की शक्ति, पूरा संसार, पूरी हुकूमतें जो है वो झुक जाती है। प्रभु का नाम है। लास्ट में आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने क्या कहा, सरगर्म हो जा भाई, अरमान दिला ताकि फिर से तेरे में उसकी सामर्थ आ जाए। इसलिए भैया वो कहां खड़ा है, दरवाजे के पर खड़ा है, खटखटाता है, उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोले, आपके अंदर आए, नया साल, नई आशीषों को, नई बरकतों को, नए आपके साथ वादे को, उसकी प्रतिज्ञा को आप लेकर प्रवेश कर सकें। प्रभु वचन के द्वारा आपको आशीष देता है। आओ से दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर की यीशु का नाम लेके तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू साढ़े की कृपा करना प्रभु, सन प्रभु जी अपने विश्वास का प्रभु जीवन दे प्रभु, साढ़े जीवन की कमियां कमजोरियां दूर कर और प्रभु जी तेरे नाम के बने रहिए प्रभु, साड़ी मदद कर प्रभु, जो से बड़े वचन ध्यान की दसने प्रभु, साड़ी जिंदगी में काम करे, सन आज्ञाकारी बना। धन्यवाद करते प्रभु तेरी आसानी में रहने दे यीशु के नाम में, आमीन। आज खड़े हो जाएंगे, एक गीत गा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे और सेवा में काम करेंगे। आज गीत भी मैं ही गाऊं, ठीक है। आ गया हूं मैं खुदा, सुन ले मेरी ये दुआ, बोल मुझे भरते मुझसे पाप मुझको और आ गया हूं मैं खुदा, सुन ले मेरी ये दुआ, मैं खुदा, सुन ले मेरी ये दुआ,
प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारी जिंदगी को ताकतवर बनाए रखता है। आज भी प्रभु अपने पाक कसूरी में अपनी आशीष सामर्थ से और वचनों की आशीष से हमें भरपूर किया। हम चाहते हैं उसी प्रभु जी एक हालात में तेरी पाक कसूरी से जा सके और आने वाले समय और साल में प्रभु तेरी नई बरकतों और तेरी नई आशीषों को अपनी जिंदगी में सरोकर प्रभु तेरे चलाने के लिए खड़े हो सके। इस समय सब भाई बहनों बच्चे बुजुर्गों के साथ होना, उन्हें आशीषों बरकत देना और संभालना, खुदा उनकी सब जरूरतों को, उनके परिवार को, उनके जनों को संभालना, सबकी अगुवाई रहनुमाई करना। इस दुआ को आपके पास कसूरी में रखते हैं, आप स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम सब के साथ, तमाम मुकद्दस लोगों के साथ और इस मंडली के साथ खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे, आमीन। फिर से बोलेंगे